Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Today I'm here to give you a good news. Some might be knowing, some might not be knowing that CBSE has reduced the syllabus for class 9th, 10th, 11th and 12th. Today I'm going to give you the reduced syllabus for class 9th science. There are total 15 chapters, out of which only 10 chapters are given by CBSE that you have to prepare for your final exams. Okay, now let's see what are those. CBSE has divided the exams in two terms, term 1 and term 2. Term 1 50% syllabus, term 2 rest 50%. In term 1 the whole paper will be MCQ type paper. Term 2 it will be subjective type paper. Term 1 and term 2 both will be of 40 marks each. In term 1 chapter number 2 from chemistry will be coming, which is matter around us pure, for 9 marks. Two chapters from biology, 5th and 6th, 18 marks. Two chapters from physics, 8 and 9, 13 marks. This gives a total of 40 marks, and this is the syllabus of your term 1. Let's move on to term 2. Term 2, two chapters from chemistry, chapter number 3 and 4 for 18 marks. Chapter number 13 from biology, 8 marks. Chapter number 10 and 11 from physics, 14 marks. This gives a total of 40 marks. Now total theory from term 1 and term 2 gives you a total of 80 marks. Okay. Now 10 marks assessment, internal assessment will be evaluated for term 1, and 10 marks internal assessment for term 2. Now if you do the grand total, it will be 100 marks, and your 100 marks are sorted. This is a very nice pattern in my opinion. This was the case when there was CCE pattern. Okay, so now let's move on to the syllabus of term 1. In term 1 I am unable to see chapter number 1 from chemistry, matter in our surroundings. That means it is completely removed. मेरे को पता है मैं करवा चुकी हूँ. No problem, knowledge never goes waste. So chapter number 2 is matter around us pure. Topics are which will be coming: elements, compounds, mixtures, heterogeneous, homogeneous, colloids and suspensions. All the topics are included. चैप्टर नंबर 2 आपको फुल प्रिपेयर करना है. अब हम देखते हैं बायोलॉजी में. चैप्टर नंबर 5 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ हम ये कर चुके हैं. देखते हैं इसमें कोई रिडक्शन है या नहीं. सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल एज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, cell organelle, cell inclusions, chloroplast, mitochondria, vacuoles, endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, nucleus, chromosomes, basic structure number. इसमें भी कोई रिडक्शन नहीं है, ये भी आपको फुल प्रिपेयर करना है. टिश्यूज़ में देखते हैं. टिश्यूज़, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, स्ट्रक्चर, फंक्शन ऑफ एनिमल एंड प्लांट टिश्यूज़, ये भी पूरा है, इसमें भी कोई रिडक्शन नहीं है. फिजिक्स पे चलते हैं, चैप्टर नंबर 8 मोशन पे, जो अभी हम कर रहे हैं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, बचा है. डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, टाइम, वेलोसिटी, टाइम, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड्स, ये भी पूरा है, इसमें भी कोई रिडक्शन नहीं है. फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में फोर्स एंड मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, NLM, एक्शन, रिएक्शन फोर्सेज, इनर्शिया ऑफ बॉडी, इनर्शिया एंड मास, मोमेंटम, फोर्स एंड एक्सेलरेशन, एलिमेंट्री आइडिया, ये भी पूरा चैप्टर है, इसमें भी कोई रिडक्शन नहीं है. मतलब टर्म 1 में आपके 5 चैप्टर आएंगे, उसमें कोई रिडक्शन नहीं है. कौन कौन से हैं? चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम केमिस्ट्री, 5 एंड 6 फ्रॉम बायोलॉजी, 8 एंड 9 फ्रॉम फिजिक्स. ओके, टर्म 1 सॉर्टेड. अब हम टर्म 2 का सिलेबस देखते हैं. अच्छा, केमिस्ट्री में से चैप्टर नंबर 3 और 4 आएगा. एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, चैप्टर नंबर 3. Atoms and molecules, law of constant proportion, atomic and molecular masses, mole concept, relationship of mole to mass of, इसमें कोई रिडक्शन नहीं है, ये चैप्टर आपको फुल करना है प्रिपेयर. स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, वैलेंसी, केमिकल फार्मूला ऑफ कॉमन कंपाउंड्स. चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी आपको पूरा करना है, कोई रिडक्शन नहीं है. मतलब केमिस्ट्री के आपको चैप्टर नंबर 2, 3 और 4 करना है. 3 चैप्टर बचे हैं केमिस्ट्री के, 4 में से फर्स्ट कट, 2, 3, 4 आपको पूरा करना है. ठीक है. अब फिजिक्स में देखते हैं. ग्रेविटेशन चैप्टर और वर्क एंड एनर्जी चैप्टर. चैप्टर नंबर 10 ग्रेविटेशन में से
यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, इसमें रिडक्शन हुआ है। फ्री फॉल के बाद का जो चैप्टर है वो कट कर दिया बिल्कुल, सीबीएसई ने उसे टाटा बाय बाय कर दिया कि हमें सिर्फ इतना चैप्टर करना है। ये जो पेज आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसके बाद का आपको कुछ भी नहीं करना चैप्टर में से, ठीक है। वर्क एंड एनर्जी का देखते हैं अब हम। वर्क डन बाय फोर्स, एनर्जी, पावर, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये भी फुल है। दैट मीन्स जो हमारा फिजिक्स है, फिजिक्स में टोटल हमारे 4 चैप्टर हैं जो आएंगे, 2 टर्म 1 में, 2 टर्म 2 में। टर्म 1 वाले में कोई रिडक्शन नहीं है चैप्टर नंबर 8 और 9 में। टर्म 2 में 10th चैप्टर ग्रेविटेशन में रिडक्शन है फ्री फॉल के बाद वाले टॉपिक्स में, ठीक है। वो मैंने आपको बुक में से बता दिया कि कहाँ से आपको करना है। तो आपको पेज नंबर 138 में एग्जाम्पल नंबर 10.5 तक करना है, उसके आगे नहीं करना। उसके आगे हमारे पास जो टॉपिक्स कट हुए हैं वो हैं थ्रस्ट एंड प्रेशर, ओके, प्रेशर इन फ्लूइड्स, buoyancy, why objects float or sink when placed on the surface of water, Archimedes principle, relative density। मतलब ये चैप्टर उसके आगे का 138 पेज नंबर से 142 पेज नंबर तक पूरा कट चुका है। चैप्टर नंबर 11 में कोई रिडक्शन है ही नहीं। अब हम देखते हैं अपना बायोलॉजी का सिलेबस। बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 13 वाई डू वी फॉल इल आएगा आपका टर्म 2 में। इसमें कोई रिडक्शन है? हेल्थ एंड इट्स फेलियर, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेज, देयर कॉजेज एंड मैनिफेस्टेशन, डिजीजेज कॉज्ड बाय माइक्रोब्स एंड देयर प्रिवेंशन। नहीं, ये चैप्टर भी पूरा है, इसमें भी कोई रिडक्शन नहीं है, ठीक है। अब एक चैप्टर है आवर एनवायरनमेंट वाली यूनिट से, नेचुरल रिसोर्सेज, जो आपका सिर्फ इंटरनल असेसमेंट में होगा। आपकी टीचर मतलब क्लास टेस्ट ले सकती है, आपके पीरियोडिक टेस्ट में हो सकता है ये चैप्टर, लेकिन ये फाइनल एग्जाम्स में नहीं आएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल्स की तरफ। आई होप आपको ये सिलेबस बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। लास्ट में आपको एक स्लाइड मिल जाएगी जिस पे मैं जिसके कंटेंट पेज पे, बुक का कंटेंट पेज होगा आपकी, उस पर मैं लिख दूंगी कौन सा चैप्टर फुल है और कौन सा कट है और किस चैप्टर में से कहाँ तक रिडक्शन है। उससे आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम प्रैक्टिकल्स देखते हैं। टर्म ये पहले क्या कह रहा है प्रैक्टिकल्स में? प्रैक्टिकल शुड बी कंडक्टेड अलॉन्गसाइड द कंसेप्ट टॉट इन थ्योरी क्लासेस। जो प्रैक्टिकल्स हैं वो साथ साथ होने चाहिए जैसे जैसे क्लास में उस चैप्टर की थ्योरी ख़त्म होती है, ठीक है। ये सीबीएसई ने बोला है स्पेशली। टर्म 1 में हमारे कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स हैं? प्रिपरेशन ऑफ अ ट्रू सोल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, शुगर एंड अलम, सस्पेंशन ऑफ सॉइल, chalk powder, fine sand in water, colloidal solution of starch in water and egg albumin, milk and water, and distinguish between these on the basis of transparency, filtration criteria, stability। ये जो है टीचर आपको जब चैप्टर नंबर 2 हो जाएगा इज मैटर अराउंड अस प्योर केमिस्ट्री का, उसके बाद होएगा ये, क्योंकि ये चैप्टर नंबर 2 का एक्सपेरिमेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास preparation of a mixture compound using iron fillings and sulfur powder and distinguishing between these on the basis of appearance, that is homogeneity, heterogeneity, behavior towards a magnet, behavior towards carbon disulfide as a solvent, effect of heat। ये भी आपका चैप्टर नंबर 2 से एक्सपेरिमेंट। जो ये थर्ड एक्सपेरिमेंट है वो भी चैप्टर नंबर 2 से है। मतलब केमिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर से इज मैटर अराउंड अस प्योर में से आपको 3 एक्सपेरिमेंट कराए जाएंगे। परफॉर्म द फॉलोइंग रिएक्शंस एंड क्लासीफाई दीज एज फिजिकल और केमिकल चेंजेस, आयरन विद कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन वाटर, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर, जिंक विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, हीटिंग ऑफ कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स, सोडियम सल्फेट विद बेरियम क्लोराइड इन द फॉर्म ऑफ देयर सोल्यूशन इन वाटर, ठीक है। केमिस्ट्री के हमारे 3 एक्सपेरिमेंट हैं बस टर्म 1 में। बायोलॉजी में से चैप्टर नंबर 5 से एक एक्सपेरिमेंट है टेम्परेरी माउंट ऑफ अनियन पील ह्यूमन चीक सेल का, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 5 में है टेम्परेरी माउंट ऑफ अनियन पील एंड ह्यूमन चीक सेल। चैप्टर नंबर 6 में से टिश्यू वाले चैप्टर में से आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज इन प्लांट्स, striped, smooth and cardiac muscle fibers and nerve cells in animals from prepared slides. Draw their labeled diagrams, ठीक है। ये आपका चैप्टर नंबर 6 में से एक एक्सपेरिमेंट है। तो टर्म 1 में आपके टोटल कितने एक्सपेरिमेंट्स हैं? 5 एक्सपेरिमेंट हैं, 3 केमिस्ट्री से और 2 बायोलॉजी से। फिजिक्स में से कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है टर्म 1 में। टर्म 2 में देखते हैं।
जो हमारा पहला एक्सपेरिमेंट है वो हमारा फिजिक्स में से है, चैप्टर नंबर 10 से। डिटर्मिनेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ सॉलिड बाय यूजिंग अ स्प्रिंग बैलेंस एंड अ मेजरिंग सिलेंडर। सेकेंड एक्सपेरिमेंट है हमारा फिजिक्स में से ही है, चैप्टर नंबर 10 ग्रेविटेशन से ही। एस्टैब्लिशिंग द रिलेशन बिटवीन लॉस इन वेट ऑफ सॉलिड व्हेन फुल्ली इमर्स्ड इन टैप वाटर, स्ट्रॉन्गली सॉल्टी वाटर विद द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय इट बाय टेकिंग एटलीस्ट 2 डिफरेंट सॉलिड्स। ठीक है, अब आता है हमारा चैप्टर नंबर 3, मतलब केमिस्ट्री में से हमारा थर्ड एक्सपेरिमेंट है वो केमिस्ट्री से है। कौन से वाले चैप्टर में से? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, बस हमारा ये टर्म 2 में हमारे 3 ही एक्सपेरिमेंट्स हैं, 2 फिजिक्स से और 1 केमिस्ट्री से। बायोलॉजी से कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है टर्म 2 में। अब जो हमारे चैप्टर्स फुल्ली मतलब डिलीट हो चुके हैं वो है चैप्टर नंबर 1, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। उसके बाद एक चैप्टर बायोलॉजी के इनफैक्ट 2 चैप्टर्स हुए हैं। एक तो चैप्टर नंबर 7, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और एक चैप्टर नंबर 15, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। एक चैप्टर हमारा फिजिक्स का हुआ है, चैप्टर नंबर 12, साउंड। आई होप आपको ये सिलेबस क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं शॉर्ट में आपको पूरा सिलेबस बता देती हूँ। चैप्टर नंबर 1, 7, 12, 15 पूरा डिलीट हो चुका है। ठीक है, चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5, 6 इनमें कोई रिडक्शन नहीं है। चैप्टर नंबर 8 और 9 में भी कोई रिडक्शन नहीं है। चैप्टर नंबर 10 में पेज नंबर 138 से 142 तक आपको नहीं करना। चैप्टर नंबर 11 और 13 में भी कोई रिडक्शन नहीं है। चैप्टर नंबर 14 जो है नेचुरल रिसोर्सेज, वो सिर्फ आपका इंटरनल असेसमेंट में या क्लास टेस्ट में या पीरियोडिक टेस्ट में आपकी टीचर ले सकती है। उसके अलावा ये चैप्टर आपका जो फाइनल एग्जाम्स है उसमें नहीं पूछा जाएगा। टर्म 1 में आपका सेकेंड चैप्टर केमिस्ट्री का, 5th और 6th चैप्टर बायोलॉजी का, 8 और 9 चैप्टर उसका फिजिक्स का आएगा। टर्म 2 में आपका चैप्टर नंबर 3, 4 केमिस्ट्री का, 10, 11 फिजिक्स का और चैप्टर नंबर 13 बायोलॉजी का आएगा। आई होप आपको ये सिलेबस पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर माई टुडेज़ वीडियो। कीप लर्निंग, कीप एन्जॉइंग। आई विल बी पोस्टिंग माई न्यू वीडियोज़ regularly and keep watching them. Do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel. This is Tamanna Singhal signing off.